آج پوری دنیا میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے دل میں عشق رسول ہے، میں محبت رسول کرتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر مسلمان یہ اس زوم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کا ایمان ہے۔ بغیر حب رسول کے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دین ہے، وہی مذہب بھی ہے، وہی مسلک بھی ہے، وہی کتاب بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یا رسول اللہ، سب کچھ آپ ہی تو ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے تو بہت بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اگر ان کی جلوہ آرائیاں نہ ہوتی تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کچھ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ بے شک ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو، یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، تو روضے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا۔ ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا، تو میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ غرض کے ہم اس شاق کی زندگیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا۔ میں بھی تو عاشق رسول ہوں، لیکن میرے عزیز یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے، حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے، اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر، وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم صرف گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے۔ تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا جو وہ عکس لگا لینا، ہم سے بڑا کون عاشق رسول
रसूल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाना। हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है? नबी की गुलामी में जान भी कुर्बान कर देंगे। हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है? मिलाद के जलसे सजाना। हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है? जुलूस के अंदर नारे लगाना। हमसे बड़ा आशिक रसूल कौन है? और उसके बाद जो है चंद महफिलें मुनक्किद करके अपने आप को जो है नबी का सबसे बड़ा आशिक साबित करने की कोशिश करना। अच्छी तरह याद रखना, ये जितनी बातें मैंने जिक्र की है, इनमें से कोई बात न खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी में है, न बिलाल हबशी की जिंदगी में है, न अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी में है, अल्लाह अकबर, न उवैस करनी की जिंदगी में है। मुझे नहीं याद आता या मैंने नहीं पढ़ा। वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं तो कर दें। हजरत मुझे नहीं पता कि हजरत उवैस करनी ने कभी कोई बिल्ला लगाया हो सर पर जिसपे नालैन रसूल छपा हुआ हो। मैं उस पर कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ इश्क था क्या और हमने उसको क्या करार दिया। दरअसल बात ये है, एक चीज होती है उसकी असल होती है और एक चीज होती है जो उसका नाम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे तब आपकी प्यास बुझेगी। अगर आप पानी पानी कहते रहे जिंदगी भर पानी कहते कहते मर जाओगे मगर प्यास न बुझ सकेगी। अगर आप जो है जबान को मीठी लज्जतें देना चाहते हो तो शहद शहद का नाम लेते रहोगे, कभी जबान को लज्जत नहीं मिल सकेगी। इसलिए कि शहद एक नाम है, नाम जपने से आपको मिठास नसीब नहीं हो सकती। पानी एक नाम है, नाम जपने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। खाना एक नाम है, अल्लाह अकबर, खाने का नाम लेने से आप और हमारी भूख कभी नहीं मिट सकती। एक है नाम और एक है हकीकत। अगर भूख मिटाना है खाना खाना पड़ेगा तब भूख मिटेगी, प्यास मिटाना है पानी पीना पड़ेगा तब प्यास मिटेगी। इसी तरीके से इश्क रसूल एक नाम है। इश्क रसूल आशिक आशिक कहने से कभी कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता जब तक के इश्क के तकाजे पूरे न किए जाएं। इश्क के तकाजे क्या है अब मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूं। अब तक हमने इश्क की बातें बहुत की है, इश्क की बातें बहुत सुनी है, लेकिन आओ इश्क के कुछ तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे पहला तकाजा इश्क का ये है कि इश्क की सिर्फ बात न की जाए बल्कि वाकई इश्क किया जाए। और याद रखिए ये मोहब्बत करना ही आसान नहीं है तो इश्क करना कहां से आसान है। इश्क और मोहब्बत में भी फर्क है। हम तो मोहब्बत की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा इश्क की बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जब किसी को किसी से लगाव हो जाए, जब महबूब के सिवा कुछ नजर ना आए, जब महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए, उठते बैठते महबूब अपने जहन और दिमाग पर सवार रहे, उसको कहते हैं इसको मोहब्बत हो गई, उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूं बड़ी माजरत के साथ हमसे बड़े आशिक रसूल तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सदका मुझे अता करे। लेकिन एक बात आपको कहूं मेरे भाई, अगर मोहब्बत ही के बारे में हमें चेक किया जाए तो हम मोहब्बत ही में नाकाम है। इश्क तो बहुत बात की मंजिल है। जैसे सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है जब तक महबूब, जैसे ठंडा पानी प्यास में इंसान के जहनो दिमाग पर सवार रहता है, उसी तरह जब तक महबूब दिलो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अगर आपको सख्त प्यास लगी है, सख्त तरीन प्यास लगी है, अगला महीना इंशाअल्लाह माह रमजान शरीफ का होगा, अल्लाह ताला हमें वहां तक पहुंचाए और हमें रोजों का शरफ अता करे। मौसम तो बहुत इस वक्त खुशगवार है, प्यास उतनी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको एहसास होगा, अगर मैं एहसास दिला सका तो मोहब्बत किसे कहते हैं। जब हमें प्यास लगती है और बहुत गर्मी का मौसम होता है और शदीद प्यास लगती है तो हमारे सामने बेटा आए तो बेटा नजर आता है, मगर
इसी तरीके से अगर पीर साहब भी आ जाएं, मुर्शिद सामने होते हैं मगर ज़हन और दिमाग पर प्यास सवार रहती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का तसव्वुर अल्लाह होता है मगर सवार जो रहती है हमारे नबी का तसव्वुर भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है। क्या हमारे नबी का ख्याल भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? ये तो मोहब्बत का तकाजा है। अब मुझे बताओ, नबी से मोहब्बत ही हम करने में मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं तो अभी इश्क की मंजिल तो आगे है। मेरे भाइयों, अगर इश्क की हकीकत बता दी जाए, बैठने की ताब न लाओ, उठ के भाग जाओ और कहो कि किस पागल को तकरीर के लिए बुलाया है। ये इश्क के तकाजे हैं, लेकिन जितना हजम कर सकोगे उतनी ही बात करेंगे। आप अंदाजा फरमाए, क्या नबी हमारे ज़हनो दिमाग पे कब सवार रहते हैं? जब नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देख रहे होते हैं, उस वक्त नबी ये मुकर्रम का तसव्वुर दिल पे आता है। माअज़ल्लाह, जब चेहरे से दाढ़ियां उड़ाकर गटरों में फेंक रहे होते हैं, उस वक्त नबी ये पाक का तसव्वुर दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जब लॉटरी के नाम पर हराम और जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब रसूलुल्लाह का ख्याल ज़हनो दिमाग पे छाया रहता है। बड़ी माजरत के साथ कई कई दिन तक तो नबी हमें याद भी नहीं आते, कई कई दिन तक तो हम नबी का नाम तक नहीं लेते। हाँ मेरे भाई, हम तो अपने दुश्मनों को इतनी अहमियत दे चुके हैं, एक दिन में 50 मरतबा दुश्मन का नाम बतौर गीबत तो लेते हैं, लेकिन महबूब का नाम बतौर तारीफ नहीं लेते। जो अपने दुश्मन का नाम इतनी मरतबा ले और अपने महबूब का नाम न ले, फिर उसका शुमार मोहब्बत करने वालों में कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अरे मोहब्बत करने वाले की अलामत तो ये है कि वो जिससे जिसको मोहब्बत होती है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, हमेशा उसका जिक्र करता है, हमेशा उसकी याद करता है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत के तकाजे हैं। बताओ, हम दिन भर में कभी तसव्वुर करो, हम दिन भर में हुजूर को कितना याद करते हैं मेरे भाई। अरे याद करना तो दूर की बात, हुजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की अज़वाज पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की औलाद पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर के खानदान के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, खुद रसूलुल्लाह के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। बस हमने जलसों में जो सुना है उतना ही सुना है, वो भी गौर से नहीं सुनते। बताओ, नबी के बारे में जानते क्या हो? एक क्रिकेटर जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में मुकम्मल पता है, वो कितने फुट का है, वो किस खानदान का है, वो किस कबीले का है, उसकी तालीम क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या है। बताओ, क्रिकेटर से मोहब्बत की उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है उसके बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर। जिस हीरो की फिल्म देखते हो उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है, जो तुम्हारे और मेरे लिए शाफ़ई यौमुन नुशूर है, उनके बारे में हमें क्या मालूमात है? कुछ मालूम नहीं है। तो इश्क का पहला तकाजा ये है, बल्कि मोहब्बत का, कि सबसे ज्यादा उसका जिक्र किया जाए जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन हम जिक्र ही नबी का कितना करते हैं? बड़ी माजरत के साथ अब तो जलसों में भी नबी का जिक्र नहीं होता, अब तो जलसों में भी नबी का तस्करा नहीं होता, बल्कि हालात ये हैं, वो अपने सिलसिले का बात कर रहा है, वो अपने सिलसिले की बात कर रहा है। जाने सिलसिला का जिक्र कब करोगे? अरे सारे सिलसिलों का जिक्र करो, सब सलाखों पर है। याद रखना, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह अकबर। आज हुजूर के बारे में हम क्या जानते हैं? नहीं नहीं, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। मैं कहता हूं, जालिमों, अपने बुजुर्गों को देखो, किसी की भी मज्जत हो, बाप दादाओं का जिक्र नहीं होता था, मज्जत के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, तीजे के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, सज्जादगी के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, उर्स के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, खतना के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, शादी बियाह के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से होता था कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता था कि मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जान रहमत का मकाम क्या है। आज बुड्ढों को भी नहीं पता है कि मुस्तफा जान रहमत
की शान क्या है। एक वाक़या अर्ज़ कर दूं भी दरमियान में, हजरत सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम नमाज के लिए बेचैन थे। वाक़या पुरानी सी इशारा कर रहा हूँ, आप बार बार उलमा से सुन चुके हैं। हम नमाज के लिए परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, पानी की तलाश में थे। वहां पर हमने एक कुआं देखा, कुआं देखने के बाद कुआं सूखा था। नन्ही सी बच्ची पूछती है परेशानी क्यों है, हमने कहा नमाज पढ़ना है। ऐसे में बच्ची ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना, हम नमाज पढ़ने। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बड़े उलमा को बता रही है कि मैं नबी की सीरत ये जानती हूँ। और हजरत सुलेमान जज़ोली कहते हैं उसी दिन मेरा ज़हन बना, अल्लाह अकबर, जब दुरूद पाक बच्ची पढ़े तो ये बरकतें हैं। अब मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा ताकि सारा ज़माना मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करे। मंजिलें तय कर रहे हैं, उसकी तालीम का सबब अगर कोई बना है तो एक नन्ही सी बच्ची बनी है, एक छोटी सी बच्ची बनी है। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में इतना मालूम था, आज तुम्हें नबी ये पाक के बारे में क्या पता है? क्या खबर है तुम्हें नबी के पाक के बारे में? क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफा नहीं हो रहा है, मजहबी जलसों में जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता। और तुम्हारे घर की महफिलों में खतना में जिक्र रसूल की बजाय डीजे बज रहा है। कौन सी आशिक रसूल? शादी में जिक्र रसूल की बजाय तुम लड़कियों को नचा रहे हो, कौन सी आशिक रसूल हो? बताइए। हालांकि है, मैंने कहा ये नबी का एहसान है। अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नबी के डंके बजा दिए तो मदीने के सरकार ने कहा तूने मेरा जिक्र अपनी ताकत के मुताबिक किया है, मैं तेरे डंकी अपनी शान के मुताबिक बजवा। जिक्र किया, किस तरीके से जिक्र किया, ये चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह अकबर। रायचूर वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अगर चाहते हो कि बच्चे मुर्तद होने से बचे, चाहते हो कि बच्चियां भागने से बचे, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर को दिलो दिमाग में बसा दो, हुजूर को ज़हनो दिमाग में बसा दो। जिसके दिल में आमेना का लाल रहेगा उसके दिल में कोई बुत जगह नहीं बना सकता, कोई इश्क जगह नहीं बना सकता, कोई मोहब्बत जगह नहीं बना सकती। आओ ना जरा देखो, बरेली का कलंदर घर में मज्जत हुई है, सबसे छोटा अजीज भाई जिसे दुनिया मौलाना हसन बरेलवी कहती है, वो इंतकाल हो गया है। जिम्मेदारियों को संभालने वाला, जिसके लिए कहा था मेरी जिम्मेदारियां हसन ने इतना संभाला कि अल्लाह मुझे जब अज्र देगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे अज्र का आधा अज्र अल्लाह मेरे भाई हसन को अता फरमाएगा। मामूली आदमी नहीं है, लेकिन इंतकाल हुआ, कमर टूट गई। जब कमर टूटी है, हाय हसन भाई नहीं कहा, वाय हसन भाई नहीं कहा, अपने भाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जानते थे हसन भाई की जितनी तारीफ करता रहूंगा उतना गम बढ़ता रहेगा। गम लेकर बैठना नहीं है, कलम उठाया, भाई का मरसिया नहीं लिखा, मस्जिद के मौके पर भी नबी की नात लिख रहे हैं। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, ये नबी की नात हो रही है। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने
والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے, اور آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے.